Good morning, class 12th. Welcome back once again in our online classes. And today we are going to discuss about the another topic from the chapter number 6 in your first part of the physics book, and that the name of the chapter is the electromagnetic induction. Today we are going to discuss about the topic that is the eddy current. Let me know what we are going to study today. Today we are going to discuss about the eddy current, how the eddy current works, eddy current कैसे working करता है. Next we will discuss about the electromagnetic damping. Then we discuss about the heat law. Then afterward, continuing the topic, we will discuss about how we can reduce the eddy current, and then we learn about the uses of eddy current. What is the use of it? फिजिक्स का मतलब क्या होता है बेटा कि अगर कोई भी चीज़ अगर वेस्ट मटेरियल भी है उसको हम यूज़ कर लिए तो दैट इज़ कॉल्ड द साइंस, और इसी को हम साइंस कहते हैं. साइंस में हमें हर चीज़ अपने यूज़ के लिए लाना है. मीन्स अगर कोई भी मटेरियल हमारा वेस्ट हो रहा है तो हमें उसको भी यूज़ करना है, उसके प्रॉब्लम्स को भी हमें पॉजिटिव वे में ले जाना है. दैट इज़ कॉल्ड द साइंस, और यही चीज़ हम साइंस में पढ़ते हैं. दैट द सेम कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू स्टडी हेयर. एडी करंट हमारा एक लॉस करंट होता है, लेकिन उसको भी हम यूज़ कर लेते हैं अपने प्रॉफिट के लिए. अभी जब पढ़ेंगे तो बहुत मज़ा आएगा और जानेंगे कि क्या होता है एडी करंट एंड हाउ वी आर गोइंग टू यूज़ द प्रोसेस ऑफ एडी करंट. उस एडी करंट को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने लाइफ में. दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. In this whole part we will learn about the how the process of eddy current is generated. Before starting the topic, let me once recall whatever we have learned in the last previous classes. In the third part of the magnet, पहले magnet के चैप्टर की बात करें तो in the first chapter we have learned how the magnetic field is generated with the help of a current. अगर हम करंट फ्लो कराते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होता है. द लॉट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट वाज देयर, लॉट्स ऑफ फिजिसिस्ट वाज देयर. द ओरेस्टेड हैड एक्सप्लेन द प्रोसेस, और वी कैन से द वे हाउ वी कैन जनरेट द मैग्नेटिक फील्ड. देन आफ्टरवर्ड इन द नेक्स्ट चैप्टर वी हैव लर्न अबाउट द मैग्नेटिक एंड मटेरियल. पहले चैप्टर का नाम था मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म. सेकेंड चैप्टर हमने पढ़ा उसमें मैग्नेटिक पार्ट में द मैग्नेटिज्म एंड मटेरियल, means magnetism and matter. In this we have learned about how we can create the magnetic property in any material. Then we have learned about the three types of a magnetic material. The first was the paramagnetic, diamagnetic and ferromagnetic material. Now we are learning here about the electromagnetic induction. In the electromagnetic induction we have started with the Faraday's law. Faraday have done a lots of experiment to prove that how the current is produced, and that current is called the induced current. कई एक्सपेरिमेंट किए थे, उसमें से 3 एक्सपेरिमेंट मैंने बताए थे, 3 और उसी से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट आपके एनसीईआरटी में थे जिसको भी हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. आफ्टर प्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रिक करंट, दैट करंट वाज कॉल्ड द इंड्यूस करंट. इंड्यूस करंट हमारा प्रोड्यूस हो गया. Then we have learned about the heat law and energy conservation. Then afterward we have learned about the Lenz law, and today we are going to learn about the eddy current. So let me start with the eddy current. By understanding what is the eddy current is there. At the starting of the chapter, we have learned that if we take one coil, अगर हम एक coil लेते हैं and this coil is connected with a galvanometer, एक coil लेते हैं इसको हम galvanometer से connect कर देते हैं. What the experiment of the Faraday was, if we pass the magnetic material, or we can say a magnet, north pole and this one is the south pole, ये चीज हमने पढ़ा था. The north pole will create a magnetic lines of force, and this was called the magnetic flux, and this was represented by the phi b is equal to b dot a cos theta. In the last class we have discussed about the variation of b with the a, and why we are using the cos theta. We have learned there कि b डॉट ए में हम डॉट प्रोडक्ट ही क्यों कर रहे हैं, या हम यहाँ पे कॉस थीटा ही क्यों कर रहे हैं, इसमें हमने साइन थीटा क्यों नहीं लिया. इसके लिए हमें अगर आपको जानना है, इफ़ यू आर वॉचिंग द फर्स्ट टाइम द वीडियो, देन गो एंड सी द लास्ट 2 previous video. It is given there. In the second video we have discussed about in a very detailed manner that why we are using the dot product in the case of a b dot a. हम यहाँ पे b dot a क्यों यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे हमने पढ़ा था
हमने लास्ट क्लास में इसको डिस्कस किया था कि बी डॉट ए में कॉस थीटा क्यों यूज करते हैं, वाई वी आर नॉट यूजिंग द साइन थीटा. ओके, what was the concept here? The concept was when we pass the magnet inside the coil, when we pass the magnetic material or magnet inside the coil, due to the change in a flux it will produce the induced EMF. हमें ये लेंस लॉ में बताया गया था, हमें फैराडे ने भी यही बताया था. फैराडे ने क्या बताया था? What was the Faraday's law? That electromotive force EMF is equal to minus n times of d phi upon dt. ये हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के केस में फैराडे ने हमें बताया था कि व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ द ईएमएफ, दैट इज द माइनस n टाइम्स ऑफ डी फाई अपॉन डी टी. इसका एक्सप्लेनेशन हमें लेंस लॉ में दिया गया था एनर्जी कंजर्वेशन के केस में. लेंस लॉ में हमें क्या दिया था? लास्ट क्लास में हम लोगों ने इस चीज़ के बारे में डिस्कस किया था. एक छोटा सा ट्रिक है जिसको आप लोग को याद रखना है. द ट्रिक वॉज द आती है तो आने नहीं देती एंड जाती है तो जाने नहीं देती. एक छोटा सा ट्रिक है कि अगर कोई भी चीज़ आती है तो उसको आने नहीं देती और जाती है तो जाने नहीं देती. बहुत छोटा सा ट्रिक है. इसको लेंस लॉ को लर्न करके रखने के लिए ये इसमें कॉन्सेप्ट क्या था? इफ वी डिस्कस अबाउट द कॉन्सेप्ट, इफ दिस इज अ कॉइल, व्हाट वाज द लेंस लॉ? इफ दिस इज अ कॉइल, इफ वी टॉक अबाउट द कॉइल एंड वी आर ब्रिंगिंग द मैग्नेट टुवर्ड द कॉइल, दिस इज द नॉर्थ केस एंड दिस इज द साउथ केस. If we are bringing the magnet towards the coil, then it will repel the change that takes place. यही हमारा फैराडे ने बताया था कि what is the source of the generation of EMF. जो भी सोर्स हमारा EMF जनरेशन का है उसका वो अपोज करता है. It means if we are taking the magnet toward the coil, अगर मैग्नेट को कॉइल की तरफ लेकर आ रहे हैं तो वो मैग्नेट को क्या करेगा? अपोज करेगा. वो आना चाह रहा है बट उसको आने नहीं देता है. एंड दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दिस एज अ नॉर्थ पोल. हमारा अपोजिशन कब होगा? व्हेन दे आर ऑफ द सेम पोल. जब हमारे सेम पोल होंगे तो वो हमारा अपोजिशन होगा. एंड इफ वी आर टेकिंग बैक द मैग्नेटिक कॉइल इट विल बिहेव एज अ साउथ पोल. ये सारी चीज़ें हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, लेंस लॉ में पढ़ा था, और वहाँ पे मैंने बताया था कि इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द एनर्जी कंजर्वेशन. ये हमारे एनर्जी कंजर्वेशन को भी रिप्रेजेंट करता है. अब बात आती है कि ऐसा होता क्यों है, यानी अगर कोई भी मैग्नेट अंदर आ रहा है तो उसको रिपल क्यों करता है और मैग्नेट बाहर जा रहा है तो उसको अट्रैक्ट क्यों करता है? दैट इज कॉल्ड द एनर्जी कंजर्वेशन. अंदर आने के लिए जो रोकता है तो उसको रिपल्सन होता है, एनर्जी लॉस होता है, और बाहर जाता है तो एनर्जी गेन होता है. वहाँ पर एनर्जी का कंजर्वेशन होता है. अब बात आती है कि ऐसा होता क्यों है. अच्छा, लास्ट क्लास में कुछ बच्चों ने ये भी पूछा था कि व्हाट हैपेंस इफ वी विल टेक लाइक दिस. अगर हम मैग्नेट का साउथ पोल अंदर की तरफ लाते हैं तो क्या होगा? बेटा अगर हम साउथ पोल की बात करें, देखो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. पहले मैं फिगर ड्रॉ कर दूं तो थोड़ा सा आसानी से क्लियर हो जाएगा कि व्हाट वाज द कॉन्सेप्ट. इस तरह का एक क्वेश्चन भी आपके एनसीईआरटी बुक में आपका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है. सपोज दैट मैं दोनों कॉन्सेप्ट को एक ही कॉइल में ड्रॉ कर रहा हूं. This one is the north pole, this one is the south. When we are bringing here, it behaves as a north pole. It was like this, and the direction of current will be in inward direction. If we are bringing the south pole towards like this, south and north, ये अंदर की तरफ ला रहे हैं, then what will be the changes here? चेंजेस हमारे सेम रहेंगे या चेंजेस हमारे ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे? ये क्वेश्चन हमें दिया गया है इन द केस ऑफ द एनसीईआरटी. कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज करके भी पूछा था कि अगर साउथ पोल को इनवर्स लाते हैं, बेटा इट इज द सेम सिमिलर केस टू दिस वन. ये सेम उसी तरह सिमिलर केस ही है. इस केस में भी हम साउथ पोल को अंदर की तरफ ही ला रहे हैं. तो जही ऐसे करो जही ऐसे करो, दोनों केस में हमारा ये नॉर्थ पोल होगा. बट बात आती है कि ये हमारा अट्रैक्टिव होना चाहिए. साउथ पोल ला रहे हैं तो साउथ पोल और नॉर्थ पोल अट्रैक्ट करता है. बेटा ध्यान देना, in this case the coil is like this. When we are bringing the north pole from this side, the flow of current will be in anti-clockwise direction. जब suppose that this is the coil, एक हम इसको मैग्नेट ले रहे हैं, this is the north pole and this one is the south pole. When we are bringing the magnet toward the coil, then this side the current will flow in the anti-clockwise direction. Anti-clockwise direction में flow करेगा and this loop will behave as a नॉर्थ पोल. बट व्हेन वी आर ब्रिंगिंग द साउथ पोल फ्रॉम दिस साइड, अगर इस साइड से हम साउथ पोल लेकर आ रहे हैं तो ये हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो जाएगा. इधर से एंटी क्लॉक
और इसके लिए क्लॉक हो जाएगा। ध्यान से देखो, अगर हम एक सपोज मैं इसमें ड्रॉ करता हूँ अपने हैंड पे लाइक दिस, अगर इसको मैंने एंटी क्लॉकवाइज ऐसे ड्रॉ किया तो इधर से एंटी क्लॉकवाइज है और इधर से देखेंगे इट विल बी द क्लॉकवाइज, ऑपोजिट हो जा रहा है, इधर क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो ये साउथ पोल है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल है, साउथ पोल को क्लॉकवाइज रिपल करता है, नॉर्थ पोल को एंटी क्लॉकवाइज रिपल करता है, साउथ पोल को क्लॉकवाइज रिपल करेगा। तो उस साइड के लिए अगर उस साइड से हम देखेंगे तो ये क्लॉकवाइज हो जाएगा और हमारा रिपल्सन जनरेट होगा। तो दोनों केस में सेम होता है, आइदर वी आर ब्रिंगिंग द नॉर्थ पोल फ्रॉम दिस साइड और वी आर ब्रिंगिंग द साउथ पोल फ्रॉम दिस साइड। ओके, लेट वी गो बैक टू द एडी करंट, बिकॉज हम लोग टॉपिक से थोड़ा सा बाहर आ गए हैं, एडी करंट में आते हैं। व्हाट इज द एडी करंट, व्हाट वाज द कॉन्सेप्ट देयर, वहां पे कॉन्सेप्ट क्या था एडी करंट का, कि व्हेन वी आर ब्रिंगिंग द नॉर्थ पोल इन दिस साइड, व्हाट हैपेंड देयर, the current will be induced and this induce of the current was explained by the Faraday. Okay, देखते हैं आगे क्या है इसमें। Now what was the concept of the Faraday? The concept of Faraday was when we are bringing the magnet towards the coil, when we are bringing the magnet towards the coil, what happens here, this will change the flux। हमारे फैराडे ने क्या बताया था कि जब हम कॉइल की तरफ मैग्नेट को लेकर आते हैं देयर विल बी सम चेंज इन अ फ्लक्स। फ्लक्स हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स कहाँ से प्रोड्यूस होता है, फ्रॉम द नॉर्थ कॉइल। व्हेन वी आर ब्रिंगिंग द कॉइल टुवर्ड द व्हेन वी आर ब्रिंगिंग द मैग्नेट टुवर्ड द कॉइल, इट द फ्लक्स विल बी चेंज देयर, यहाँ पे फ्लक्स में चेंजेस होंगे एंड दिस चेंज ऑफ द फ्लक्स विल प्रोड्यूस द इंड्यूस्ड ईएमएफ। बार बार मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, बार बार पूरे चैप्टर में एक ही चीज हमें पढ़ना है, चेंज इन अ फ्लक्स विल प्रोड्यूस द ईएमएफ एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ ईएमएफ ऑफ करंट विल बी जनरेटेड हियर। तो यहाँ पे जो भी फ्लक्स में चेंज होता है वो हमारा ईएमएफ प्रोड्यूस होता है और उसी की वजह से हमारा करंट प्रोड्यूस होता है। बट अब क्वेश्चन आता है कि अगर हमारा ये फ्लक्स चेंज हो रहा है तो ईएमएफ जनरेट हो रहा है और ईएमएफ जनरेट हो रहा है तो हमारा करंट प्रोड्यूस होगा, लेकिन क्या ये करंट हमारा इंड्यूस करंट, जो भी इसको हम इंड्यूस करंट कहते थे, क्या ये हमारा एडी करंट है? देन वी विल से नो, देयर इज अ स्मॉल चेंजेस देयर। अब देखते हैं एडी करंट क्या होता है, व्हाट इज द एडी करंट। इस केस में हम मैग्नेट और कंडक्टिंग मटेरियल वायर था हमारा यहाँ पे, बट इन द केस ऑफ सपोज दैट दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये हमारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। अगर हम यहाँ पर कॉइल की जगह एक कंडक्टर ले आते हैं, एक कंडक्टिंग मटेरियल ले आते हैं लाइक दिस, सपोज द शेप ऑफ द कंडक्टिंग मटेरियल इज नॉन ज्योमेट्रिकल। ज्योमेट्रिकल क्या होता है, जो स्फेरिकल होता है, सर्कुलर होता है या फिर लूप केस होता है, दे आर कॉल्ड द ज्योमेट्रिकल। बट व्हेन इट इज अ नॉन ज्योमेट्रिकल कंडक्टिंग मटेरियल, किसी भी शेप का हो जाए, तो क्या यहाँ पर हमारा कुछ करंट जनरेट होगा? अब क्वेश्चन आता है कि क्या यहाँ पे कुछ करंट जनरेट होगा? यस, द स्मॉल अमाउंट ऑफ अ करंट विल बी जनरेटेड हियर, एक छोटी सी करंट यहाँ पे जनरेट होगी एंड दैट करंट इज कॉल्ड द एडी करंट, और इसी करंट को हम एडी करंट कहते हैं। नाउ सी इन दिस केस, इस केस में हमारा करंट कैसे जनरेट होगा? यहाँ पर तो करंट हमारा जनरेट हो रहा था, करंट हमारा सर्कुलर जनरेट हो रहा था और हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आसानी से निकाल ले रहे थे। बट इन दिस केस करंट विल बी जनरेटेड एंड दैट इज द करंट इज लाइक दिस। आपने उसमें देखा होगा कि अगर कोई स्टैटिक वाटर है, एक पॉन्ड में स्टैटिक वाटर, एंड इफ वी विल थ्रो दैट स्टोन ऑन देम, व्हाट हैपेंड, द सर्कुलेटिंग वेव्स आर जनरेटेड देयर। क्लास 11th का लास्ट चैप्टर था, वहाँ पे ऑसिलेशन में, वहाँ पे हम लोगों ने वेव के बारे में पढ़ा था, दैट वी हैव स्टडीड देयर एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सर्कुलेटिंग करेंट। दिस इज कॉल्ड द सर्कुलेटिंग करेंट, इसको हम सर्कुलेटिंग करंट कहते हैं और वी कैन से दैट इज आल्सो कॉल्ड द एडी करंट, इसको हम एडी करंट भी कहते हैं। एडी करंट मींस जनरेशन ऑफ द एडीज। सो दिस इज द एडी करंट एंड दिस वन इज द इंड्यूस्ड करंट। बेटा दोनों में बहुत सिंपल सा छोटा सा वेरिएशन है, छोटा सा डिफरेंस है, दोनों में ध्यान रखना। तो एडी करंट और हमारे इंड्यूस्ड करंट में क्या चेंजेस है, क्या वेरिएशन है। सो वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट द एडी करंट। हमने एडी करंट के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेकंड पार्ट इसका कि हाउ एडी करंट इज जनरेटेड। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसमें देखेंगे कैसे हमारा एडी करंट यहाँ पे जनरेट होता है। यू कैन सी द फिगर इज गिवन हियर, दिस इज द साउथ पोल एंड दिस वन इज द नॉर्थ पोल। ये हमारा साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है।
नाउ व्हाट विल हैपन हियर, अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारा कुछ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जनरेट होता है एंड दैट इज ऑलवेज फ्रॉम नॉर्थ पोल टूवर्ड द साउथ पोल। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जनरेट होता है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होता है। दैट इज अ वेरी इजी पार्ट, आप लोगों को पता है, बहुत आसानी से कई बार पढ़ रखा है। अब बात आती है कि हमने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में क्या किया, वी हैव टेकन वन रॉफ टू पार्ट, ये स्टैटिक पार्ट है और इसमें एक थ्रेड से हमने एक कंडक्टिंग मटेरियल कॉपर प्लेट को यहाँ पर लगा दिया है। दिस इज द कॉपर प्लेट, ये हमारा कॉपर प्लेट है, हमने इसको लगा दिया है और कॉपर प्लेट, अब इसको हमने ड्रॉप कर दिया है, छोड़ दिया है, कॉपर प्लेट को छोड़ दिया है। व्हाट वी विल सी, द कॉपर प्लेट विल पास फ्रॉम हियर। अब इसमें चेंजेस क्या होते हैं, वेरिएशंस क्या होते हैं। सपोज दैट इन दिस केस द कॉपर प्लेट इज हियर, कॉपर प्लेट हमारा यहाँ पर है। अब यहाँ पर फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। फ्लक्स की वैल्यू जीरो क्यों होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा क्या होता है, चेंज इन अ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस या चेंज इन अ मैग्नेटिक लाइंस पर यूनिट ऑफ एट द यूनिट एरिया, यानी कितने एरिया से कितने लाइंस ऑफ फोर्सेस पास होती हैं, दैट इज कॉल्ड द फ्लक्स। इन दिस केस नो मैग्नेट वाज देयर, नो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वाज देयर, सो फ्लक्स विल बी जीरो। अब जैसे ही ये हमारा पास होता है, सपोज दैट, इसको फील करना, फील करोगे तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, बिकॉज ऑफ फिजिक्स फील करने वाली चीज़ है, समझने वाली चीज़ है, ऑब्जर्व करने वाली चीज़ है। हम उसको केमिकल रिएक्शन करा करके नहीं देख सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन कैसे हो रहा है, हमें इसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। when the copper plate passes between the magnet, a small amount of lines of forces will be cut from here, इसको lines of forces को कट करेगा। अब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस अगर चेंज होंगी, यानी फ्लक्स में चेंजेस होंगे, तो ईएमएफ जनरेट होगा और ईएमएफ से हमारा करंट जनरेट होता है, दैट इज कॉल्ड द एडी करंट। अब देखो एडी करंट और इंड्यूस करंट में डिफरेंस क्या होता है। जैसे ही सपोज दैट इसमें चेंज क्या आएगा, सपोज दैट अगर हमने एक पेंडुलम टाइप का प्लेट को ले लिया, ये प्लेट है हमारी कॉपर प्लेट, इसको ले लिया, पहले हमने इसको ड्रॉप करके छोड़ा तो इसको 10 सेकेंड लगा स्टैटिक आने में, लेकिन व्हेन वी प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड, ये 5 सेकेंड में ही स्टैटिक आ गया, 2 सेकेंड में ही स्टैटिक आ गया, सपोज दैट 2 सेकेंड में ही स्टैटिक आ गया। इसका रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ, बार बार मैंने बताया था, लास्ट क्लास में भी बताया था कि फैराडे ने क्या बताया है कि द चेंज इन अ फ्लक्स विल रिपल द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द ईएमएफ, यानी फ्लक्स में चेंजेस होता है, फ्लक्स में ईएमएफ जनरेट होता है और वो जो ईएमएफ जनरेट होता है वो अपने प्रोडक्शन का अपोज करता है। इसीलिए बार बार हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन को इंडिकेट किया था। नेगेटिव साइन हमें क्या इंडिकेट करता है, दैट अपोजेस द वे ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ फ्लक्स, यानी जिस वजह से फ्लक्स प्रोड्यूस होता है उसी का वो अपोज होता है। इसीलिए लेंस ने बताया था, जब लेंस लॉ का मैंने बताया था तो वहाँ पे छोटा सा ट्रिक मैंने बताया था। छोटा सा ट्रिक क्या था, अगर आती है तो आने नहीं देती और जाती है तो जाने नहीं देती, बार बार वहाँ मैंने बताया था। अगर आपको देखना है वो वीडियो, जस्ट गो टू द प्लेलिस्ट एंड सर्च ओवर देयर। ना वापस आते हैं अपने टॉपिक पे आते हैं, ट्रिक से हटके थोड़ा सा टॉपिक पे आते हैं। हेयर द कॉपर प्लेट वॉज हेयर, जैसे कॉपर प्लेट हमारी इस मैग्नेट के बीच से पास होती है, वो क्या करेगा, एक फोर्स जनरेट करेगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट करेगा, एंड इट अपोजेस द वे ऑफ मूवमेंट, जिस वजह से मूवमेंट हो रहा है उसको अपोज करेगा और वो आके बीच में रुक जाता है। दैट नाउ स्मॉल अमाउंट ऑफ अ फ्लक्स विल चेंज हियर एंड ड्यू टू द चेंज इन अ फ्लक्स द करंट विल बी जनरेटेड एंड दैट इज कॉल्ड द एडी करंट। ये हमारा एडी करंट है। सो हमने पहला टॉपिक पढ़ लिया अबाउट द एडी करंट एंड हाउ इट वर्क्स, ये हमने पढ़ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग के बारे में। बेटा डैम्पिंग क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग क्या होता है कि व्हेन द एडी करंट इज जनरेटेड, एडी करंट अगर हमारा जनरेट होता है तो हमने पढ़ा है पावर का फॉर्मूला, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं बिकॉज ऑफ यहाँ पर पूरा बोर्ड फिल हो गया है और बोर्ड को साफ करना पड़ेगा तभी हमें आगे हम पढ़ पाएंगे। नाउ वी नो द फॉर्मूला फॉर अ पावर इज इक्वल टू P इज इक्वल टू I स्क्वायर R, हमने फॉर्मूला यहाँ पे पढ़ रखा है पावर का। वी आर जनरेटिंग द एडी करंट, एडी करंट जनरेट कर रहे हैं, इट मीन्स एडी करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट, एडी करंट, स्क्वायर ऑफ द एडी करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पावर। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे ये एडी करंट जनरेट होगा, एडी करंट मीन्स लॉस ऑफ पावर,
तो यहाँ जैसे एडी करंट जनरेट होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा पावर में, और ये पावर हीट एनर्जी के फॉर्म में रिलीज होता है, इसीलिए हमारा हीटिंग प्रोसेस इफेक्ट हमारा जनरेट होता है। आपने देखा होगा फैन जब रोटेट होता है तो रोटेशन के बाद थोड़ी देर बाद वो हीट कर जाता है, वाई? बिकॉज ऑफ द एडी करंट। ऐसे बहुत से इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो रोटेशन के बाद या मूवमेंट के बाद या ऑपरेशन के बाद हीट कर जाते हैं बिकॉज ऑफ द एडी करंट। नाउ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग एंड दिस इज कॉल्ड द लॉस ऑफ पावर इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। जो भी हमारे हीट एनर्जी लॉस होती है या पावर के फॉर्म में लॉस होता है, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। अब बात आती है कि इसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। सपोज दैट इन दिस केस, इस एक्सपेरिमेंट की अपनी वापस बात करते हैं। हियर वी हैव टेकन द प्लेट ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ए। हमने यहां पर एक प्लेट लिया जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है? ए है। अब इस एरिया को हमें रिड्यूस करना है। रिड्यूस करेंगे तो हमारा लॉस कम हो जाएगा। अब देखो कैसे लॉस कम होता है। देखो बहुत सिंपल सी चीज़ है, ध्यान समझना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको न बुक में मिलेगा, एनसीईआरटी बुक में नहीं मिलेगा, ना आपको रेफरेंस बुक में मिलेगा, क्योंकि वहाँ बहुत शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ है। हाउ वी कैन रिड्यूस द लॉस वाइल डिक्रीजिंग द क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया को रिड्यूस करके कैसे हम कर सकते हैं? वी नो द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस, दैट इज द R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? रो एल अपॉन ए। देखो मैं बहुत पीछे के बैक साइड के टॉपिक को कोरिलेट करा रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट आपको बुक में नहीं मिलेगा, ध्यान देना। When we reduce the cross section area, the value of the resistance is increased। बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि R हमारा क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1 अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया। अगर हम क्रॉस सेक्शन एरिया को रिड्यूस कर देते हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, और रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। और जैसे ही रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट, V इज इक्वल टू IR। जैसे ही रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होती है, करंट डिक्रीज हो जाता है, यानी एडी करंट हमारा कम हो जाता है। सो वी कैन से इफ वी आर रिड्यूसिंग द क्रॉस सेक्शन एरिया, द करंट विल बी रिड्यूस्ड, और ये करंट हमारा रिड्यूस हो जाता है। तो हमें क्या करना है? हमें इसको एरिया कैसे कर देना है? हम इसके क्रॉस सेक्शन एरिया को कैसे रिड्यूस करेंगे? रिडक्शन का एक प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड द स्लॉटिंग प्रोसेस। इसको स्लॉटिंग प्रोसेस कहते हैं। इसको हम कट करके बीच से निकाल देंगे ऐसे, जिससे एडी करंट का लॉस कम हो जाएगा। हमने क्रॉस सेक्शन एरिया को कट करके बीच से निकाल दिया और हमने प्लेट को ऐसे बना दिया। जैसे हमने क्रॉस सेक्शन, नाउ इन दिस केस व्हाट हैपेंड, क्रॉस सेक्शन एरिया रिड्यूस हो गया, हमारा एडी करंट भी रिड्यूस हो गया। दैट इज द प्रोसेस हाउ टू रिड्यूस द एडी करंट। एक तो ये तरीका है कि क्रॉस सेक्शन एरिया को रिड्यूस करके। एक और तरीका होता है कि वाइल लैमिनेटिंग विद द लैक्वेयर मटेरियल, एक लैक्वेयर मटेरियल होता है, केमिकल मटेरियल होता है, उससे हम लैमिनेट कर देते हैं। अगर उसके ऊपर एक लेयर बना देते हैं, कॉइल के ऊपर अगर हमने उसका लेयर बना दिया, तो वो एडी करंट लॉस को, हीट लॉस को रिड्यूस कर देता है, हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, हीट लॉस को रिड्यूस कर देता है, और हमारा कंपोनेंट जल्दी हीट नहीं करने पाता है। दैट इज द अनदर पार्ट ऑफ द हाउ टू रिड्यूस द एडी करंट। एडी करंट से जो पावर लॉस होता है उसको कैसे रिड्यूस किया जाता है। सो बेटा अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? अभी तक हम लोगों ने आज की क्लास में पढ़ा अबाउट द एडी करंट। एडी करंट क्या होता है, बहुत डिटेल में जाना एडी करंट में, कैसे एडी करंट वर्क करता है, कई एक्सपेरिमेंट्स लिए, कुछ पुराने टॉपिक्स के बारे में बात किया। देन वी हैव डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग में हमने पढ़ा कि द अमाउंट ऑफ अ फोर्स दैट अपोज द मोशन, एंड जिससे हमारा लॉस जनरेट होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग के बारे में पढ़ा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग के बारे में पढ़ा कि एडी करंट से कुछ हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है पावर के फॉर्म में, और उस पावर को, जो पावर के फॉर्म में हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उसको से कुछ एडी करंट से हमारा कुछ पावर लॉस होता है। पावर लॉस हमारा हीट एनर्जी के फॉर्म में होता है, और हीट, इसको कहते हैं हीट लॉस, और इसको जूल लॉस भी कहते हैं। इसको ध्यान देना बेटा, इसको जूल लॉस भी कहते हैं। जूल वॉज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। उन्होंने बताया था कि इसको जूल लॉस के नाम से भी जाना जाता है। कुछ बुक्स में हो सकता है मिल जाए, एनसीईआरटी में मिल जाएगा आपको, जूल लॉस का कॉन्सेप्ट उसने थोड़ा सा बताया है। फिर हमने पढ़ा हाउ टू रिड्यूस द एडी करंट, कैसे अब एडी करंट से हमारा लॉस हो रहा है तो कैसे उसको रिड्यूस कर सकते हैं। देन नाउ द लास्ट पार्ट इज हियर, व्हाट इज द यूज ऑफ करंट। बेटा साइंस में मैंने पहले ही बताया था कि साइंस का मतलब क्या होता है कि हम वेस्ट मैनेजमेंट को भी अप्लाई कर लें, वेस्ट मटेरियल को भी अपने काम में ले आए, दैट इज कॉल्ड द साइंस। एडी करंट से हमारा लॉस हो रहा था, अब इसी लॉस से हमने क्या कर लिया, अपना प्रॉफिट क्रिएट कर लिया। कैसे प्रॉफिट करते हैं?
द फर्स्ट यूज इज ए मैग्नेट ब्रेकिंग इन अ ट्रेन. मैग्नेट ब्रेकिंग, कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रेन्स के बारे में आप लोगों ने सुना होगा. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रेन्स के बारे में अगर नहीं सुना, जस्ट गो टू द गूगल एंड सर्च ओवर देयर कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रेन्स कैसे होती हैं. मैं प्रोसेस बता दे रहा हूँ कि वहाँ पे एडी करंट का यूज़ कैसे करते हैं, उसके ब्रेकिंग सिस्टम में कैसे यूज़ करते हैं. सपोज दैट दिस इज द व्हील ऑफ अ मैग्नेटिक ट्रेन्स. मैग्नेटिक ट्रेन्स की व्हील है. इनके ऊपर ये लोग क्या करते हैं, ऐसे वाइंडिंग्स क्रिएट करते हैं. वाइंडिंग्स क्रिएट करते हैं. व्हेन दे वांट टू स्टॉप द दिस व्हील, दे फ्लो द करंट इन अ wire. They flow the current in a wire. Due to the flowing of a current, we know very well, a small amount of a magnetic flux will be generated. एक मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो जाएगा और व्हील के मोशन की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस आते हैं, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स कट होता है. व्हील में मोशन की वजह से जब हमारा व्हील रोटेट होगा तो क्रॉस सेक्शन एरिया हमारा रोटेट होता है, और क्रॉस सेक्शन एरिया रोटेट होगा, सरफेस एरिया रोटेट होगा, तो कुछ ना कुछ फ्लक्स में चेंजेस आएंगे. और इसी फ्लक्स में चेंजेस की वजह से स्मॉल अमाउंट ऑफ एडी करंट इज जनरेटेड. और अभी अभी मैंने कई बार बताया है, हर वीडियो में बार बार ये बताता हूँ, द रूल ऑफ द फेराडे. फेराडे ने क्या बताया था कि द वे इट प्रोड्यूस्ड द वे इट विल बी रिप्लेस्ड. जैसे बना वैसे ही खत्म हो जाएगा. वहाँ पे भी मैंने एक ट्रिक बताया था बेटा, याद रखने के लिए, कि फेराडेज का लॉ क्या था, नस्वर है, जैसे बना वैसे ही खत्म हो जाएगा. ये छोटा सा ट्रिक था वहाँ पे. फैराडे ने क्या बताया था, पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में यही बताया गया है, जिस वजह से बना उसी वजह से खत्म हो जाएगा. सो एडी करंट विल बी जनरेटेड एंड इट विल अपोज द मैग्नेटिक फील्ड, और अपोजिशन की वजह से हमारी ट्रेन रुक जाती है. ज़्यादा अमाउंट तेज़ी से रोकना रहता है, ज़्यादा अमाउंट में हम मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करते हैं, ज़्यादा एडी करंट प्रोड्यूस होता है और हमारी ट्रेन रुक जाती है. द सेकेंड वॉज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग में हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था बहुत ही डिटेल में. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग में द फोर्स अप्लाइड इज कॉल्ड इन अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग. उसके बाद हम इंडक्टेंस फर्नेस भी यूज़ करते हैं. इंडक्टेंस फर्नेस क्या होता है, टू प्रोडक्शन ऑफ अ हीट एनर्जी. अभी अभी मैंने बताया था कि ईएमएफ की वजह से कुछ हीट लॉस होता है, कुछ हीट लॉस होता है जिसको जूल लॉस भी कहते हैं या पावर लॉस भी कहते हैं. और मैंने कोरिलेट भी कराया था कि किस वजह से हीट का लॉस होता है, एनर्जी लॉस होता है. और इसी हीट एनर्जी को हम यूज़ करते हैं फर्नेस में. फर्नेस में भट्टी होती है और उसमें हम यूज़ करते हैं. अब इसकी वजह से क्या होता है, वी कैन ऑल्सो, इतना ज़्यादा अमाउंट में हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है कि वी कैन ईजिली मेल्ट द लार्ज अमाउंट ऑफ मेटल. मेटल प्योरिफिकेशन में भी इसका यूज़ करते हैं फर्नेस का. सो दैट इज द एंड द यूज ऑफ द एडी करंट. एंड द लास्ट वन इज द इलेक्ट्रिक पावर मीटर. बेटा यू कैन, अगर आपके घर में पुराना मीटर लगा होगा देन यू कैन सी देयर, उसमें एक बॉल रोटेट करता रहता है, एक व्हील रोटेट करता रहता है. एंड दैट इज वाई बिकॉज ऑफ द एडी करंट. व्हाट हैपेंड देयर, इन द केस ऑफ द इलेक्ट्रिक मीटर अ कॉइल इज प्रेजेंट देयर. वहाँ पर एक कॉइल प्रोड्यूस होता है लाइक दिस, अ कॉइल इज प्रेजेंट देयर. When the current passes from the coil, a small amount of a magnetic field will be produced, and due to this magnetic field, a force is generated. Production of EMF will take place, and EMF की वजह से यहाँ पर एडी करंट जनरेट होता है जो इस पर फोर्स लगाता है, व्हील हमारा रोटेट करना स्टार्ट कर देता है. और व्हील का रोटेटर हमारा कनेक्टेड होता है एक मीटर से, जो हमारा वो मेजर कर देता है कि what amount of the unit we have used there. Okay, so that was all about the class, and this was the second last topic. We can say two more topics are there in the book in this chapter, and that is the inductance, and last one is the AC generator. बेटा that will be your homework. AC generator आपका homework होगा, एक बार आप उसको पढ़ के रखना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में लास्ट क्लास होने वाली है इंडक्शन की, और उसमें हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक, उसमें हम पढ़ेंगे कैपेसिटी, कंडक्टेंस के बारे में, इंडक्टेंस के बारे में, और उसके बाद बहुत जल्दी से हम एक्सप्लेन करेंगे अबाउट द एसी जनरेटर. सो इसके बाद चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, देन वी कम टू द एनसीईआरटी एग्जांपल्स. ओके, एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइज. सो दैट वाज फॉर टुडे, एंड इसको एक बार फिर से आप देखना वीडियो. इफ एनी प्रॉब्लम और एनी कंफ्यूजन इज देयर, कोई भी टॉपिक से रिलेटेड कंफ्यूजन है या कोई भी क्वेश्चन आता है, तो जस्ट गो टू द कमेंट बॉक्स एंड कमेंट ओवर देयर. डेफिनेटली आई विल ट्राई टू गिव आंसर एज सून एज पॉसिबल देयर. ओके, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय, पढ़ाई करते रहो.